हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोड वाल अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ लिनक्स का इंपॉर्टेंट कमांड जो कि वेरी हेल्पफुल होता है। तो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ pwd कमांड। pwd command is used to know about a present working directory. Okay, so once you type a pwd, here you get a present working directory details like /home/kit. Next one is I use a cat command. Cat command basically used for a combine or merge file or used to display the file content. And another use of a cat command is used for uh, check file details. Okay, and used to create a new file with a content. So हम लोग एक वन बाय वन करके यहाँ पे पहले देखते हैं कि कैसे cat command यूज करते हैं. For firstly I use a cat command with a new file name. Okay, so pqr.txt. Okay, inside this I type some message like okay. Now I just want to check this file is created or not. So for that I use a ls, and here you can see pqr.txt file is created. Okay, text file is basically. So now I use another cat command use like I use I want to see the content inside pqr.txt. So I just type pqr.txt. So here you can see the message inside this text file. And another use of cat command is if you want to combine the two file like cat. I have one file like pqr.txt and another file. Let me check first file abc, and so I just want to combine file abc with file pq. Okay, so here you can see I combine this file. Another command is a ls command we use for listing of file. Here you can see the different types of a file and directory is created, and ls dash ll use for know about the details about that files like file inside a file like you can check here different types of file permission, date of created that files, such type of details are present here. Okay, so next one is a mkdir. Okay, mkdir is used for create a directory. So I use a mkdir and create a directory like directory pqr. Okay, so I create a directory pqr. Let's check ls. Here you can see directory pqr. Directory pqr is available. Okay, next command that is a rmdir. So I use a rmdir and I used to delete a file like pqr.txt file, pqr.txt file. Okay, so pqr not a directory. Okay, no problem. I just want to delete rmdir. Okay, and file 123 directory not empty. Okay, no problem. rmdir. Okay, and acdf not a directory. Okay, ये भी directory नहीं है, तो let me check first which one is a directory pqr, right? तो directory pqr. Okay, rmdir directory क्या है? dir pqr. Yeah, this directory is deleted. So I was not sure about directory, so I got this kinds of error. Next one is
cd command is used for change the directory. So I here type a cd and directory like directory 1256 okay. So I will switch in directory 1256 and here I check any file is available. No, any file is available in such directory. Next one command is rm. Rm is used for remove file and anything like I use rm pqr dot txt okay. It will remove no such file or directory. Why this file is not there? Okay, no problem. I used to delete another file like a file xyz. So rm file pq. Okay, no such file or directory. Okay. I face this problem because I have not changed directory. Okay, so once I switch to the first one directory and then we use rm pqr dot txt, then it will delete. I face this problem because presently I am in directory 1256 and there is no any file like a pqr text file, so I am getting such type of error, no such file or directory. Okay, so can't remove, and basically rm is used for remove or delete file or directory. Next one is MB command. MB command basically used for rename the files and move the file and folders. Okay, so RM command, MB command में हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं फर्स्टली. एंड अनदर थिंग क्या होता है MB कमांड के अंदर आप कर सकते हो मूव करते हो फाइल को. तो हम लोग कर सकते हैं पहले रीनेम करके देखते हैं. MB है एंड मेरे पास कौन कौन से फाइल है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ. मेरे पास फाइल है, हाँ मुझे फाइल एबीसी है ना, कोई ए बी सी राइट, एबीसी फाइल है आपका, जिसको मुझे करना है, किसमें मूव करना है, फाइल पी क्यू आर, आई थिंक पी क्यू आर था, देखती हूँ. हाँ, तो अभी इसमें क्या होगा कि एल एस, अभी मैं चेक करती हूँ, एल एस फाइल ए बी सी. ओके, तो कैन नॉट एक्सेस फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है. अगर चेक करूँ फाइल पी क्यू आर, तो आप देख सकते हो ये फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये वाला फाइल नहीं कर रहा है बिकॉज ये मूव हो गया आपका PQR के अंदर. ओके, सेम आप क्या कर सकते हो ना कि आप पाथ को मूव करा सकते हो, मतलब कि मूव करा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में. तो मूव MB कमांड का हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं, मूव फाइल फाइल को हम लोग रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल देना पड़ता है. मैं एक बार करके देखती हूँ. MB कमांड, कोई फाइल का नेम ले लेते हैं, लाइक मेरे पास क्या है, फाइल PQR है. ओके, एंड किस डायरेक्टरी में है, तो हम लोग होम में है, KIIT में है, और KIIT होम के अंदर कोई डायरेक्टरी होगा लाइक, एक मिनट में देख लूँ, ऊपर चेक करके देख लेती हूँ एक बार. डायरेक्टरी है 1 2, ठीक है, फोल्डर भी है डिफरेंट डिफरेंट. तो मैं एक बार चेक करती हूँ, DBAA में देखती हूँ, DBAA. यस, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये फाइल है ये आपका किस में मूव हो गया है, DBAA में मूव हो गया है. तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो MB कमांड के यूज से, और रीनेम कर सकते हो फाइल का. नेक्स्ट वन इज CP कमांड. CP कमांड इज यूज फॉर कॉपी द फाइल. CP एंड जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो एक दूसरे में, लाइक मेरा क्या है कि फाइल ABC है, जिसको मैं कहाँ कॉपी करना चाहती हूँ. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कौन कौन से फाइल है मेरे में. फाइल ABC है, फाइल PQ है, और WC है. फाइल PQ के अंदर ओके कॉपी करना चाहते हैं. फाइल ABC, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. ओके, CP फाइल WC फाइल PQ.
ये हो गया। तो हम ये मैं चेक करती हूँ कि कैट फाइल wc में देखते हैं क्या कंटेंट है। नो कंटेंट है। कैट फाइल pq में देखते हैं क्या कंटेंट है। इसमें भी कोई भी कंटेंट नहीं है, तो बस कॉपी हो गया है, ये दिख रहा है बट कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट वाले फाइल जो मेरे पास है ये अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन से फाइल है। तो आप इस तरह से कोई भी फाइल में सपोज करो कि मैं यही कर देती हूँ, अगर इसमें कंटेंट नहीं है देन मुझे क्या करना है ना कि कौन सा फाइल में कंटेंट था मेरा, 1 मिनट देखने दीजिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ था ना। हम्म, pq.txt में है और एक फाइल pq में है। फाइल pq में कंटेंट है, तो मुझे क्या करना है, फाइल pq को आपको फाइल wc में कर देना है। तो कैट फाइल pq को मैंने चेंज भी तो किया था ना, फाइल कैट फाइल pqr। ओके, इसमें देखते हैं फाइल pqr नहीं है। ओके, फाइल ls फाइल abc है क्या? नो। ls फाइल wc, यस wc फाइल है। कैट फाइल wc में कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट इसमें नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो सिंपली, आपको मैंने दिखा दिया है, आप करके देखना खुद से। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है आपका वी आई क्या होता है, जैसे आप नोटपैड एडिटर है उसी तरह वी आई आपका लिनक्स के अंदर एक एडिटर होता है। वी आई मैंने किया, प्रेस किया, यहाँ पे आपको इंसर्ट के लिए आई प्रेस करना पड़ेगा। ओके, देन आप इंसर्ट मोड में स्विच करते हो, देन आपको लिखना पड़ेगा कुछ भी, आप मैसेज यहाँ पे इंटर कर सकते हो, हेलो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मैंने इस तरह से कुछ मैसेज लिख दिया है रैंडम। अब इसके बाद इसके बाहर आना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इस तरह से आपको नीचे आना पड़ता है। लास्ट में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपेंड। आपको जाकर क्या पढ़ना पड़ता है, कोलन क्यू स्मॉल क्यू कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे नहीं होगा, सबसे नीचे जाना पड़ता है आपको, सबसे लास्ट में आप जाओगे। इसके नीचे आपको जाना पड़ेगा अपेंड। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोलन क्यू। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन एंड स्विच मोड नहीं होता है इसमें, जल्दी फंस जाता है आई थिंक।
आप ऐसे करके यहाँ से स्विच कर सकते हो। ओके, वी आई मोड में बहुत ट्रिकी थोड़ा सा है, उसको उसके बाहर आना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपको कोड यही है कि आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा, देन आपको कॉलन क्यू एंड एक्सक्लेमेशन को क्लिक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ESC और एंटर की को, ESC और के साथ आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिएगा, तभी आप बाहर आ पाओगे उससे। ओके, एक तरह के एडिटर ही है। देन उसके बाद हम लोग को देखना है CH मोड। CH मोड में हम लोग क्या करते हैं ना, परमिशन मॉडिफाई कर, लाइक वेरियस टाइप ऑफ फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं, परमिशंस गिवन होते हैं। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, उसमें 3 तरह के यूजर्स होते हैं फाइल का अंदर, जैसे कि एक ओनर होगा यूजर्स, फिर एक होता है आपका ग्रुप, और एक होता है अदर। ओके, तो उसके लिए परमिशंस भी होते हैं उसमें मॉडिफाई करने के लिए, कि ये कौन सा यूजर्स जो है वो रीड कर सकता है फाइल को, एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट कर सकता है, इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चेंज मोड। ओके, चेंज मोड करेंगे। मेरे पास कोई फाइल है, सपोज कीजिए मैं फाइल ABC ले लेती हूँ। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, किसको, तो यूजर को आपको उस पे एक्स एग्जीक्यूट करने का परमिशन दे रही हूँ सिर्फ। ठीक है, किसको दे रही हूँ, तो फाइल PQR को। ओके, तो फाइल्स नो सच फाइल इज अवेलेबल। ओके, फाइल WC है ना, तो मैं उस पर ये ऊपर करके देखती हूँ, चेंज मोड। ओके, U+X, आपको देख कर करना पड़ेगा कि कौन से फाइल में आप कर रहे हो। फाइल WC किया मैंने, तो आप देख सकते हो। अब इसको अंदर देखो, आप जाकर LS और -L के साथ जाओगे, तब देखोगे कि मैंने किस फाइल पे किया है, फाइल WC के ऊपर। तो आप चेक करो यहाँ पे, फाइल WC कहीं दिख रहा है आपको, इस साइड में दिखेगा। हाँ, फाइल WC का देखो कलर भी चेंज हो गया, और इसमें मैंने क्या दिया था आपको, एग्जीक्यूट करने का परमिशन। तो आप देख सकते हो किसको दिया था, तो ये जो 3 आपको दिख रहा है वो होता है जो आपका हाइफन, मतलब इसका मतलब नो परमिशन, R मतलब रीड, एंड W मतलब राइट का परमिशन है। नेक्स्ट जो होगा वो ये ग्रुप के लिए हो जाता है, और थर्ड वन जो होता है वो अदर्स के लिए हो जाता है। ऐसा पेयरिंग किया जाता है इसमें। तो आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली चेंज मोड में अभी यहाँ पे समझना है कि फाइल परमिशन, एक तरह के परमिशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका चेंज ऑनरशिप। चेंज ऑनरशिप से पहले हम लोग इको देखते हैं। इको जो होता है बेसिकली, जो आप लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो ना, सेम इको में हम लोग वही काम करते हैं। इको का यूज करते हैं, और उसके अंदर प्रिंट, कोई भी मैसेज को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ओके, लाइक इस तरह से डबल कोट के अंदर हो गया। अब इसको प्रेस करोगे तो आपका मैसेज इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। फिर आप इको का यूज करोगे। ओके, 10+10, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, कोई भी वेरिएबल में वैल्यू को शाइन करना पड़ेगा, तो आप वो भी इको के हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट होता है BC। BC क्या होता है, बेसिक कैलकुलेटर। इट्स वर्क लाइक कैलकुलेटर। ओके, नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह ही वो वर्क करेगा। जस्ट लाइक हियर आई प्रेस 34, it will give you output. Here I perform some big calculation. इस तरह के भी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्विच करके बाहर निकलेंगे। देन आपको करना है, BC हो गया है। देन हम लोग एक और ऑपरेटर का यूज, कमांड का यूज करते हैं, जो है आपका XPR। बेसिकली XPR स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, एंड इसके अंदर हम लोग है ना वेरियस टाइप का जो भी होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकल, बिटवाइज एंड रिलेशनल, सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सपेंस एंड लेंथ, अगर लिखूँ, अगर कोई स्ट्रिंग मेरा गिवन है लाइक हेलो वर्ल्ड ही मैं लिख देती हूँ। ओके, तो आप देखना कि इसका कितना लेंथ है, वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। इसी तरह से अगर कुछ भी, मतलब कि कोई भी अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी मैं करके दिखाती हूँ आपको, +1 2, ओके, देन आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन काम करेगा। और भी आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, लाइक बिटवाइज का आप करके देखिएगा, इस तरह के ऑपरेशंस आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर है आपका, ये मेरा हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो ये सारे आपका बेसिक है। एक होता है चेंज ऑनरशिप। चेंज ऑनरशिप जिसको हम लोग CHOW के नाम से जानते हैं, ठीक है, WN के नाम से जानते हैं, चेंज ऑनरशिप। उसमें क्या करते हैं, कोई भी फाइल को हम
ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर जाते हैं, पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरा जो भी फाइल है ना, तो उसका रूट यूजर KIIT है और मुझे ना रूट यूजर चेंज करना है। लाइक मुझे ABCDF में मुझे ना कोई नया यूजर देना है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे कमांड यूज कर सकते हैं, sudo CHOWN। ठीक है, कौन सा मैंने फाइल दिया था, ABCDF ना, कौन सा फाइल था आपका, ACDF। ओके, ACDF में, ACDF में तो हमको नया वाला यूजर रखना है, तो नया वाला यूजर का मैं नाम ले लेती हूँ, सपोज करो नवी। ठीक है, इस तरह से। एंड आप देख सकते हो, एंड उसके बाद हमको करना क्या है, जो ACDF है फाइल, उसके अंदर करना है। पासवर्ड मांग रहा है, मुझे पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है इसका, तो मैंने बस जैसे ही रैंडम क्लिक कर दिया, जिसके कारण इनवैलिड यूजर बता रहे हैं। ओके, तो एक बार आप अपना सिस्टम में अगर आपको पासवर्ड पता होगा, तो आपको यहाँ पे बस पासवर्ड एंटर करना है, देन आप स्विच कर जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कमांड अच्छे से समझ आया होगा। वन मोर कमांड इज अ टच कमांड। टच कमांड basically used for create a empty file and folder, like I want to create XYZW, is it dot txt? Okay, this is a empty file. Ls, here you can check xyz.txt file is created. Okay, so this much is a command in Linux, which is a very important command. So I hope this is a very helpful video for you. And thanks for watching my video. Please like and subscribe more and more. And see you in next video. Bye bye.